Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 20th October 2021. So let's start today's discussion. The first article states that India, Israel, UAE, and US launches the Quad Forum. So speaking of this, currently, if we speak now, we'll have two different Quad Forum in which US and India are common. The other two are different. The Quad 1 which we know is India, US, Australia and Japan. Now the Quad 2 which has been formed recently, it consists of India, Israel, UAE and US. So this article is basically speaking about their relationship or on what topics are they building this quad, or what are their main aims or objective of this quad. So, India, Israel, UAE, and US have decided to launch a new quadrilateral economic forum, a new economic forum, as per the External Affair Minister Mr. Shankar joined his counterpart at the video conference from Jerusalem. So, where he was on 5 day visit. Okay, that's not important. Economic forum is the basis of this quad. Uh, we can say which has been, yeah, quad forum which has been made. The quadrilateral which formed his bilateral meeting with Israel. So Israel is there, UAE is there, and US and India. Next, infrastructure project. Mr. Lapid added that Mr. Lapid, if I speak, he is the Prime Minister or the Foreign Minister of Israel. Israeli. So Mr. Lapid added that the grouping had decided to establish an international forum for economic cooperation and specially discussed the possibilities for the joint infrastructure project. So इकोनॉमिक फोरम में सबसे पहला क्या इनिशिएटिव है, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. चारों कंट्रीज अपने अपने साथ या चारों कंट्रीज मिलकर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने की डिसीजंस या फिर हम बोल सकते हैं डिस्कशन चल रहा है करंटली. US State Department said that during the meeting on Monday, the four ministers discussed the expanding economic and political cooperation. Infrastructure के बाद क्या है? Economic and political cooperation. Okay. In the Middle East and Asia, including through trade, combating climate change, energy, cooperation. So economic and political में सब आता है, environment को लेके, trade को लेके and everything. Foreign Minister of US, Israel and UAE had met in Washington on 13th October to discuss the modalities of the trilateral cooperation and set up two working groups on religious coexistence and other was on water and energy. तो ये तीनों कंट्रीज़ की पहले भी मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये लोग ने डिसाइड किया था कि विल हैव सच फोरम. Business groups in India, the UAE, and Israel have also been talked for trilateral cooperation since the diplomatic ties were established. An international federation for Indo-Israel Chamber of Conference has practiced the potentials for agreement backed by the Israeli innovation, UAE funding and Indian manufacturing. So basically अगर हम बात करें UAE, इसराइल और US का अलग ट्राइलेटरल मीटिंग पहले हुआ. इंडिया एंड इसराइल UAE इन लोग का पहले से ट्राइलेटरल मीटिंग्स चल रहा था ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द कॉमननेस ये चारों ने साथ में आके दे डिसाइडेड टू दे दैट दे विल हैव सच फोरम. सो बिजनेस वाला हो गया, ठीक है. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंटली 100 मिलियन बाय 2020. इनका ये बात था कि पार्टनरशिप में कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेडिंग होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो 2030 तक इट विल क्रॉस 100 बिलियन. ठीक है, एक ट्रेड रिलेशन के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बोला गया है. इन द फर्स्ट सच वेंचर UAE प्रोजेक्ट्स फॉर द robotic solar panels cleaning technology was signed by Israeli company Ecopia and has manufactured based in India. So this is showing their trilateral relationship which has already been started by making the robotic panels or having different ventures together. Significantly, neither the quadrilateral meeting nor the trilateral meeting discussed the issue of Palestine and resuming the Middle East
पीस. नाउ इफ पैलेस्टाइन के बारे में आई थिंक सो आप सबको पता होगा. इट इज़ अ वेरी वास्ट हिस्ट्री और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आयर पर्सपेक्टिव. द we can say the situation of Jewish or the situation of Palestine people. So somehow it was coincidentally, or I don't know for what reason, Palestine topic was not taken into consideration or was not taking into meeting. Bilateral talks on Monday. Mr. Jaishankar and Mr. Lapid held bilateral meeting agreeing on the resume of the free trade agreement. बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन ये बंद था. एंड अभी ये लोगों ने बोला कि हमारा जो एक्चुअल रिलेशन था विल स्टार्ट ट्रेड को लेके, देन वैक्सीन डोजेस को लेके, सब दे हैव रिज्यूम दिया बायलैटरल टॉक्स. इसी आर्टिकल के रिलेटेड और एक साइड में आर्टिकल आया था विच स्टेट दैट द फोकस विल बी ऑन इकोनॉमिक कॉपरेशन. सो द मीटिंग जो ये हुआ है इट विल मोर बी फॉर द इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन द 4 countries. Okay, the struggle of both the sides of on a bureaucratic issues. Former ambassador Ron Malka has gone from being ambassador here to the director general of the Ministry of Economy. So उनका ये बोलना है कि जो ये मीटिंग हुआ, because being an ambassador she is also the part of all the such thing, और she is aware about the meetings or the discussions, and उनका ये बोलना है कि it is more for economic cooperation or for economic development. Will it be essentially an agreement on goods or will be a service included into FTA? So we will have to see how it is resolved. क्योंकि इसराइल के साथ अगर हम देखें हमारा जो बायलैटरल था तो we had this FTA agreement with Israel, but बीच में because of some of the reason FTA का जो हम लोग का जो डील एग्रीमेंट था उसको बंद कर दिया गया था. करेंटली उन्होंने बोला है कि विल रिज्यूम इट अगेन. सो लेट्स सी आगे इनके रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज़ों को ये लोग कंसिडर करेंगे. अभी तक पैलेस्टाइन को लेकर किसी भी टॉपिक पे बात नहीं हुई है उधर. सो इट शोज़ कि वो लोग मतलब उनके सोशल पर्सपेक्टिव्स पे उतना ध्यान नहीं देना चाहेंगे, बिकॉज इट विल ऑब्वियसली क्रिएट अ कोल्ड सिचुएशन बिटवीन द कंट्रीज एंड देयरफॉर दे आर मोर फोकस टुवर्ड्स द इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एड टू द कंट्रीज बिटवीन द फोरम. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. The next article states that a global player in solar power. Now, talking of the background of this article, it is basically speaking about the state of Tamil Nadu, where solar panel has been used for the power generation, and it has showed the different types of solar energy generations that you can do and how it has actually benefited that state. So from this article, you should remember the different technologies that are being used currently for the generation of solar energy, the policy support, okay, which policy support it and how is it different from the other types of technology. So large scale solar projects in Tamil Nadu have been rapid growth in recent years. In the 5 last years, cumulative installed capacity a 4-fold increase to 4.4 gigawatt as per 2021 March. So aiding this capacity, states reasonably has high solutions level and matching the solar potential. Estimation is approximately 279 gigawatt of energy वो लोग ने estimate किया कि we can produce it. ठीक है. Now we'll see next is the types of technology. सो तमिलनाडु रिलीज्ड अ सोलर पॉलिसी, जो पॉलिसी के ऊपर जिस पॉलिसीज़ के बेसिस पे ये लोग सोलर जनरेशन कर रहे हैं वो तमिलनाडु में 2019 में आया था. दैट वाज नोन एज सोलर पॉलिसी 2019. सो सोलर पॉलिसी 2019 क्या बताता था? इट एम टू क्रिएट 9 गीगावाट ऑफ सोलर इंस्टॉलेशन बाय 2023. ठीक है, 2023 तक उन्होंने बोला था कि हम लोग कम से कम एनुअली 9 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे. सो इस टारगेट को डबल करने के लिए या इस टारगेट को एंड करने के लिए उन्होंने दो अलग अलग टाइप ऑफ सोलर सेल्स का यूज़ किया. ठीक है, अब ये क्या सोलर सेल्स हो सकते हैं? तो एक है मोनोक्रिस्टल. ठीक है, वन वॉज द मोनोक्रिस्टल सेल्स, सोलर सेल्स, और दूसरा था हमारा मल्टी क्रिस्टल या मल्टी क्रिस्टलाइन. सो मोनोक्रिस्टल एंड मल्टी क्रिस्टलाइन, दोनों का डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो इनका जो सिलिकॉन वेफर है इसमें जो यूज़ होता है उसका मात्रा या फिर उसका इंटेंसिटी डिफर्स करता है.
अगर मैं सिंगल मतलब मोनो का बात करूँ या मल्टी का बात करूँ, ठीक है. सो द फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल यूज्ड मोनो crystalline and multi-crystalline silicon wafer where the forum is made from the single crystal silicon. See, सिंगल अगर हम मोनो की बात करें, इसकी इंटेंसिटी इज लिटिल मोर एज कंपेयर टू मल्टी सिलिकॉन वेफर बिकॉज being single it has high efficiency as compared to the मल्टी. सो मोनोक्रिस्टलाइन का जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा 24% तक जा सकता है, वेरएज इसका जो है मल्टी क्रिस्टल का वो 20% तक ही जा पाता है. सो दैट्स द डिफरेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सिलिकॉन यूज्ड इन दिस टेक्नोलॉजी. अगर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की बात करें तो हिस्टोरिकली इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वी कैन से ओल्डेस्ट ग्लोबल प्रोटोकॉल मार्केट है जो ये यूज़ किया जाता है. Monocrystalline cells are dominant today, although they are high priced than the multicrystalline ones. The difference in diminishing and will soon parity. This was result in monopanel being preferred more over the multi due to the high efficiency. So when it comes to solar panel, though panel is monocrystalline wafer is expensive, it is hard to buy or anything as compared to multi, but then also the companies, then also we can say the different organization use mono as it has more efficiency as compared to the multi. So though it takes a high charge, it actually gives you that much efficiency out of it. Newer technology incorporating crystal silicons focuses on the bifocal solar cells. ठीक है. सो नई और टेक्नोलॉजीज दे आर ट्राइंग टू यूज़, जिसमें कि बायफिकल्स हो सकते हैं, कैल्शियम टेरालाइट्स को यूज़ करके दे आर ट्राइंग कि जो क्रिस्टलाइन सोलर्स हैं, सिलिकॉन्स हैं, उससे कम में या उसकी उतनी एफिशिएंसी में बट कम एक्सपेंसेस में वो चीज़ बन सके. सो अलग अलग अल्टरनेटिव्स बनाने की कोशिश चल रही है सो दैट दे कैन इंक्रीज दी सोलर. और ये हम लोग बेसिकली तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं. पॉलिसी सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, पॉलिसी सपोर्ट इज एसेंशियल टू फास्ट ट्रैक द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. अ पोर्शन ऑफ बजट ऑफ फॉर रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट शुड बी सेट असाइड द एक्सक्लूसिव ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. सो दे से कि अगर हमारे पास प्रॉपर पॉलिसी रहेगा व्हेन इट कम्स टू सोलर एनर्जी या सोलर जनरेशन, तो वी विल बी एबल टू ट्रैक कि पिछले साल से ये साल कितना ज़्यादा हुआ है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है, कितनी एफिशिएंसी वो टेक्नोलॉजी ने हमें दी है. सो इसके लिए वी नीड अ प्रॉपर सोलर पॉलिसी, जस्ट लाइक तमिलनाडु हैव, जो मैंने बोला 2019 में लाया गया था. ठीक है. सो दिस हैज़ एक्चुअली मेकिंग एफिशिएंट फॉर तमिलनाडु टू बी अ ग्लोबल प्लेयर इन सोलर पावर सेक्टर, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली वर्किंग ऑन दी current available generation technology, but it is also trying to develop different technologies, or we can say different alternatives other than the mono or the multi silicon wafer. So that is good as compared to the global market, because we are not keeping us to a static portion, but we are trying to be a dynamic when it's come to a global market. So therefore it states keep Tamil Nadu or the solar power generation in Tamil Nadu is becoming a global player, or is becoming a real role player when it comes to solar panel all over the world. Now next article states that India, Russia face common threats from Afghanistan. अफ़गानिस्तान की सिचुएशन अप्रॉक्सीमेटली अगस्त से हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसकी सिचुएशन क्या है, कितने थ्रेट्स हैं, इंडिया को क्या देखना पड़ रहा है, यूएस, एवरी कंट्री समहाउ फेसिंग द सिचुएशंस. दो बहुत सारी कंट्रीज़ ने स्ट्रैटेजिकली प्लान करके दे ट्राई टू मेड अ गुड रिलेशन विद तालिबान. इंडिया उतनी अच्छे से नहीं कर पाया बिकॉज इंडिया ऑलवेज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉट शोइंग देयर डायरेक्ट सपोर्ट टू एनी ऑफ द कंट्रीज़. जैसे कि इंडिपेंडेंस से पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, वैसे ही आज भी इंडिया बोलता है कि वी आर नॉट सपोर्टिव हम नहीं बोल सकते, बट येस हम किसी कंट्री को किसी कंट्री के लिए दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन नहीं ख़राब करेंगे. एंड समहाउ दिस इज़ अ वेरी बेसिक रीज़न वाई कि इंडिया अब तक तालिबान के साथ उतने अच्छे रिलेशन नहीं बना पा रहा है. ठीक है, बिकॉज इंडिया डजंट सपोर्ट्स द वे द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच तालिबान इज़ वर्किंग करंटली.
though India tried कि at least we will have a formal meeting of formal relation, but it has not resulted to that much extent. So now the current article states that ambassador to Russia confirms the NSA meeting. So it is through our ambassador जो हमें पता चला अफगानिस्तान के क्या थ्रेट्स है, अफगानिस्तान का क्या इस चीज़ पे बोलना है. India and Russia face common threats emanating from Afghanistan, said India's outgoing ambassador to Russia, confirming India's presence at Moscow format meeting. सो इंडिया के जो अम्बेसडर है जो रशिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं उनका, जिनका नाम है वेंकटेश वर्मा, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म किया कि जो सिचुएशन शायद रशिया फेस कर रहा है, सेम टाइप ऑफ सिचुएशन इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग व्हेन इट कम्स टू द कंसर्न ऑफ तालिबान. Moscow format meeting, which will include Taliban Deputy Prime Minister on Wednesday, a meeting of National Security Advisor in Delhi in November. The situation in Afghanistan poses a similar problem in terms of drug trafficking, terrorism. So ये कुछ कॉमन हम बोल सकते हैं सिचुएशंस है. ड्रग हो गया, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, देन हमारा बाकी की जो चीज़ें हो गए जैसे कि टेररिज्म हो गए. ठीक है, ये कुछ कॉमन इंस्टेबिलिटी बना रहे हैं एज पर द एम्बेसडर हु इज सेंट टू रिटर्न टू दिल्ली शॉर्टली. तो उन्होंने वो मीटिंग में वहाँ पर ऐसा बोला. Both sides recognizes the common threat emanating from Afghanistan that will affect India as well as Russia. Moscow format meeting will see an official Indian delegation led by the Joint Secretary for Pakistan, Afghanistan, Iran and Joint. तो जॉइंटली सब जगह से ये आए हैं, वहाँ का ये रिव्यू वहाँ पे बता रहे हैं. नाउ मिलिट्री सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ, during the meeting, which will be addressed by the Russian Foreign Minister said the participants who discussed the prospect for the development of military, political situations in Afghanistan and formation of the government, adding to a separate meeting of Russia, China and Pakistan took place in Moscow. So मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ इस आर्टिकल का बैकग्राउंड क्या बताना चाहते हैं, सो करेंटली अफ़गानिस्तान को जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखना है, क्या क्या चीज़ें रखने हैं, उस पर डिस्कशन चल रहे हैं, जिस पे एक अलग मीटिंग भी हुआ था रशिया, चाइना और पाकिस्तान का इस चीज़ के रिलेटेड. सो एम्बेसडर वर्मा ऑल्सो कन्फर्म द अपकमिंग मीटिंग ऑफ रशिया, इंडिया एंड चाइना. सिमिलर एक मीटिंग रशिया, इंडिया एंड चाइना के बीच में भी होने वाली है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जिसमें कि ये वॉरफेयर एंड कैसा हो या फिर इस ईयर की एंडिंग का क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सल्यूशन ला सकते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं. ठीक है, 2020 में ये समिट नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द पैंडमिक सिचुएशन, बट समहाउ एवरी कंट्री इज इनिशिएटिंग कि वी शुड हैव सच मीटिंग ताकि प्रॉपर डिस्कशंस होके वी कैन कम टू अ पॉइंट. Ambassador also confirmed that S-400 missiles were on track for the delivery. जैसे हमने बात किया S-400 मिसाइल की वजह से हमने काटसा भी देखा था. ठीक है, सो उसी पे बात हुई कि हमारे एम्बेसडर ने या हमारे डेलीगेशन ने ये चीज़ हमें कंफर्म करके दिया कि उनकी S-400 जो है उसकी वर्किंग प्रॉपरली चल रही है और दिसंबर के एंड तक जो है हमारे पास डिलीवरी आ जाएगी. सो ये जो भी हमने देखा इट वाज इन द मीटिंग, जो चीज़ें डिस्कस हुई है व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान एज अ कंट्री, व्हेन इट कम्स टू तालिबान एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंट ग्रुप्स टॉकिंग और डिस्कसिंग द एंडिंग्स ऑफ अफगानिस्तान. ठीक है, सो ये हमारे डेलीगेशन ने, हमारे एम्बेसडर ने हमें बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें बात हुई हैं. सो यू शुड बी अपडेटेड कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यू शुड हैव अ क्रिटिकल थिंकिंग कि क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि इसका फर्दर रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं. ठीक है, अगर ऐसे रिलेशन चल रहे हैं तो क्या रशिया, इंडिया, चाइना, जैसे मैंने बोला कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान की मीट हुई है, वैसे रशिया, इंडिया, चाइना की होने वाली है. सो विल इट बी अ पॉजिटिव वन? क्या चाइना इंडिया का रिलेशन बढ़ता दिखेगा? क्या चाइना यहाँ पर भी इन्फ्लुएंस करता पाया जाएगा? तो यू कैन हैव अ फॉरवर्ड थिंकिंग ऑफ सच सिचुएशंस. नेक्स्ट आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. क्या बताया है? तो क्रिजल जो हमारा फॉर्म है उसने ये चीज़ बताया कि हमारा NPA जो है
उस वो जो एज़ कम्पेयर टू द डेटा जो 7.5 था वो बढ़कर जो है 8.9 हो गया है। दो वो हमारा जो ग्लोबली एक टाइम पर 11 पर आया था उतना नहीं है। ठीक है, क्रिजल आई थिंक सो सबको पता है कि हमें जब सिबिल स्कोर चाहिए रहता है हमारा, ठीक है, तो सिबिल स्कोर के लिए वी गो टू क्रिजल, या क्रिजल हमें स्टेटमेंट देता है। क्रिजल के बारे में आपको शॉर्ट में एक बार बता दूंगी मैं बाद में। ठीक है, सो gross NPA of the bank to rise 8.8 to 9% from 7.5%, क्रिजल का ये बोलना है। MSMEs to contribute more to the stress of the asset according to the NPAs। सो उनका क्या बोलना है कि March 31 तक हमारा जो NPA था वो 7.5 था, बट ये एस्टिमेशन है कि अभी हमारा NPA 8.9 हो गया है। दो जो 2018 में हमारा NPA 11.2 चला गया था विच वॉज द हाईएस्ट, उतना नहीं गया है, बट येस इट हैज़ शोड एन इंक्रीज इन दी NPA, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारा इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए वर्क कर रहा है, एक फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो कि हमारे NPA के लिए काम करेगा। आप मुझे बताएंगे कि उस फर्म का नाम क्या है। ठीक है, so there's a proper organization, a proper body made that will help to convert this NPA, the bad banks, into a good bank. You will let me know the name of that company or the organization. COVID-19 relief measures such as restructuring the dispensation and emergency credit lines would help to rise it. ठीक है, ये कुछ इनिशिएटिव्स बताएं कि अगर इसको प्रॉपरली यूज़ करोगे तो इट कैन हेल्प to come out of it. Within 2% of the bank credit expected to reconstruct by the end, compromising of the NPAs and loan, it should be touch 10.11। ये एजेंसी का बोलना है कि अभी जो हम 8 या 9 बोल रहे हैं, बट अगर NPA या फिर बैड लोन का बैड बैंक का कुछ मतलब ये चीज़ नहीं ठीक हुआ तो इट कैन ऑब्वियसली रीच टू 10 to 11% फॉर श्योर। अब तक नहीं हुआ है, बट येस इट कैन हैपन अगर इस पर वर्किंग स्टार्ट नहीं की तो। देन इज राइट ऑफ इफेक्ट। राइट ऑफ इफेक्ट की अगर हम बात करें, स्ट्रेस असेट्स इन दिस सेगमेंट्स आर राइजिंग फ्रॉम 4 to 5 to 17 and 18%, and therefore it would trend higher, but the write off primarily an unsecured segment. Again it is talking about the rising range or the rising percent of the non-performing effect or non-performing asset. So third wave, कहीं ना कहीं the third wave or it is said that the COVID waves are the responsible because हमें दो वो हमारे डेडलाइंस को बढ़ा दिया गया था, बट बहुत सारी जगह ऐसे थी कि डेडलाइंस बढ़ाने के बाद भी लोगों ने पे नहीं कर पाए लोन, वो NPA बन गया, NPA बनने की वजह से बैड बैंक्स बढ़ गए, एंड सो दैट कैन बी अ रीज़न। लेट्स सी एंडिंग तक, दिसंबर के एंडिंग तक कहाँ तक सिचुएशन जाता है, क्या वो 10% पे पहुँचेगा या इट विल गो डाउन फ्रॉम 8 to 9। सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।